Hello everyone. So in this video we will continue our discussion with the topic Pullorum disease. So without any further ado, let's get started. Moving on, we will discuss about the clinical signs. So simply the Pullorum disease is seen mainly in the chicks under the 3 weeks of the age. The first indication is usually excessive number of the dead in shell chicks and death soon after the hatching. The sign includes the depression with a tendency to huddle, respiratory distress, lack of appetite, and white, viscous, thick and sticky droppings which adhere to the feathers around the vent. The mortality varies considerably and in extreme cases can be 100%. So देखो भाई, simply अब हम लोग बात करेंगे about the clinical signs that you will notice in the avian species if they are suffering with the Pullorum disease. So simply the Pullorum disease is mainly seen in the chicks under the 3 weeks of the age. बेसिकली जो पुलोरम डिजीज है जिसका कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला पुलेरम, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया उन चिक्स को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा जिनकी एज 3 वीक से कम होती है. ठीक है. आफ्टर दैट द फर्स्ट इंडिकेशन इज यूजुअली एक्सेसिव नंबर ऑफ द डेड इन शेल चिक्स अंडर डेथ सून आफ्टर द हैचिंग. अगर हैचरी में आप नोटिस करते हो कि बिफोर हैचिंग ऑफ द एग्स और आफ्टर हैचिंग ऑफ द एग्स चिक्स की जो डेथ है उनका काउंट इंक्रीज हो गया है, सो इट मे बी इंडिकेटिव कि उस पर्टिकुलर लॉट में क्या था, पुलोरम डिजीज का इन्फेक्शन. ठीक है. Moving on, the signs includes the depression with a tendency to huddle, respiratory distress, lack of appetite and viscous droppings which adhere to the feathers around the vent. Basically, जो भी chicks, जो भी avian species पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे वहां पे आपको डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, वो हडल करने की टेंडेंसी देखने के लिए मिलेगी, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, खाना पीना कम कर देंगे. साथ ही साथ जो ड्रूपिंग्स होंगी उनकी कैसी होंगी, व्हाइट कलर की, विस्कस होंगी, जो बहुत ही थिक होगा एंड इट विल बी स्टिकी इन नेचर और जो कि जाके पर्टिकुलरली वेंट एरिया के अराउंड जितने भी फेदर्स है उनसे जाके अटैच हो जाएगा. ठीक है. After that, the mortality rate varies considerably and in extreme cases it can be 100%. अब ये जो पुलोरम डिजीज है जिसका कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला पुलोरम, ठीक है, बेसिकली इसकी वजह से जो भी एवियन स्पीशीज अफेक्ट होती है वहां पे जो मॉर्टेलिटी रेट है ये वेरिएबल होता है, लेकिन अगर सीवियर आउटब्रेक होता है तो ये मॉर्टेलिटी रेट 100% भी हो सकता है. ठीक है. So moving on, a subacute form with the lameness and the swollen hog joints may be seen in growing birds and result in the poor growth rates. The older birds appear listless, depressed and dull and have a pale shrunken combs. Reduced egg production may be only sign of the disease in the adult birds. So देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे about the clinical signs that you will notice in the birds suffering with the Pullorum disease. So simply पुलोरम डिजीज के सब एक्यूट फॉर्म में आपको लेमनेस और स्वेलन हॉक जॉइंट देखने के लिए मिलेगा इन द ग्रोइंग बर्ड्स, जिसकी वजह से ग्रोइंग बर्ड्स का जो ग्रोथ रेट है इट विल बी वेरी वेरी पुअर और वेरी वेरी स्लो. ठीक है. आफ्टर दैट द ओल्डर बर्ड्स अपीयर लिस्टलेस, that is depressed and dull and have the pale and shrunken combs. Basically जो भी older birds होंगी which are suffering with the Pullorum disease वहां पे आपको depression, dullness देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ जो उनका comb होगा it will be shrunken and pale. ठीक है. Moving on, the reduced egg production may be only sign of the disease in the adult birds. बेसिकली जो भी अडल्ट बर्ड्स और ओल्डर बर्ड्स पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे वहां पे बहुत प्रोमिनेंट आपको क्लिनिकल साइंस देखने के लिए नहीं मिलते, बट द ओनली साइन दैट यू विल सी इज द रिड्यूस्ड एग प्रोडक्शन. ठीक है. Moving on, we will discuss about the lesions that you will see in the chicks or the avian species suffering with the Pullorum disease. So simply the chicks which die soon after the hatching have peritonitis with an inflamed and unabsorbed yolk sac. The lungs may be congested and liver dark and swollen with hemorrhages visible on the surfaces. Sometimes in the chicks which die in the acute phase, there are no specific lesions or only those of a septicemia with the liver congested and the subcutaneous blood vessel dilated and prominent.
सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द लीशंस दैट यू विल नोटिस इन द केस ऑफ द पुलोरम डिजीज infection. So simply the chicks which die soon after the hatching have the peritonitis with an inflamed unabsorbed yolk sac. बेसिकली जो भी चिक्स जिनकी डेथ जो है तुरंत हैचिंग के बाद हो जाती है, वहां पे आपको पेरिटोनाइटिस देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल लेयर। साथ ही साथ आपको वहां पे अनएब्जॉर्ब्ड यॉक सैक देखने के लिए मिलेगा, विच इज द इंडिकेटिव कि ये जो पर्टिकुलर चिक थी इट इज सफरिंग विद द पुलोरम डिजीज इन्फेक्शन। ठीक है। After that, the lungs may be congested and liver dark and swollen with the hemorrhages visible on the surface. अब देखो, जो भी एवियन स्पीशीज, जो भी चिक्स, जो भी पोल्ट्री बर्ड्स पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे, वहां पे आपको लंग्स में कंजेशन देखने के लिए मिलेगा, लिवर डार्क कलर का, साथ ही साथ स्वेलन देखने के लिए मिलेगा, और वहां पे आपको हेमरेजेस देखने के लिए मिलेंगे विच विल बी विजिबल ऑन द सरफेस। ठीक है। Moving on, sometimes in the chicks which die in the acute phase, there are no specific lesions or only those of a septicemia with liver congested and subcutaneous blood vessels dilated and prominent. So देखो भाई, जो भी चिक्स हैं जिनकी पुलोरम डिजीज के एक्यूट फेज में ही डेथ हो जाती है, वहां पे आपको कोई स्पेसिफिक लीशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस आपको वहां पे सेप्टिसीमिया या तो सिस्टमिक इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ वहां पे आपको कंजेस्टेड लिवर और डायलेशन इन द सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई होप कि आप सभी को एक्यूट फेस और क्रोनिक फेस ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पता होगा। एक्यूट फेस मतलब क्या हुआ, जब कोर्स ऑफ इन्फेक्शन काफी कम हो, और क्रोनिक फेस मतलब लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन, जो कोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो काफी ज्यादा लंबा है। ठीक है। Moving on, in the chicks which die after showing the signs of the disease for 1 to 2 days, there may be typhlitis. The ceca are enlarged and distended with the cast of the hard, dry necrotic material. The desecrate small white necrotic foci are usually found in the liver, lungs, myocardium, and gizzard wall. So देखो भाई, simply in the chicks which die soon after showing the signs of the disease for 1 to 2 days, there may be typhlitis. The ceca are enlarged and distended with the cast of the hard, dry, and necrotic material. So देखो भाई, सिंपली जो भी चिक्स पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे जिसके कारण उनकी डेथ 1 से 2 दिन में हो गई, तब वहां पे आपको टिफ्लाइटिस देखने के लिए मिलेगा, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द सीकम। साथ ही साथ वहां पे आपको सीका का एनलार्जमेंट और डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द हार्ड एंड ड्राई नेक्रोटिक मटेरियल। ठीक है। मूविंग ऑन, यू विल ऑल्सो नोटिस द desecrate small white necrotic foci usually in the liver, lungs, myocardium and gizzard wall. देखो, जो भी चिक्स पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे जिसके कारण उस पर्टिकुलर चिक की डेथ 1 से 2 दिन में हो गई, वहां पे आपको नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगा इन द लिवर, लंग्स, मायोकार्डियम एंड गिजर्ड वॉल। सिंपली आपको छोटे छोटे नेक्रोटिक फोकाई देखने के लिए मिलेंगे इन दीज ऑर्गन्स। ठीक है। So now moving on, in the growers affected with the arthritis, the hock joints are usually enlarged due to the presence of the excess orange colored gelatinous material around the joints. In the adult birds, the characteristic lesion is an abnormal ovary with the ova being irregular, cystic, misshapen, discolored and pedunculated with the prominent thickened stalks. There may be peritonitis, arthritis and pericarditis in some infected hens. The ovary is inactive with the ova small, pale and undeveloped. So देखो भाई, simply in the growers affected with the arthritis, the hock joints are usually enlarged due to the presence of the excess orange colored gelatinous material around the joints. बेसिकली जो भी बर्ड्स अपने ग्रोइंग स्टेज में है एंड दे आर सफरिंग विद द पुलोरम डिजीज, वहां पे आपको अर्थराइटिस देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, एंड स्पेशली आपको वहां पे हॉक जॉइंट में एनलार्जमेंट देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द ऑरेंज कलर जेलेटिनस मटेरियल। ठीक है। After that, in the adult birds, the characteristic lesion is an abnormal ovary with the ova being irregular, cystic, misshapen, discolored, pedunculated with the prominent thickened stalks. So देखो भाई, जो भी बर्ड्स अडल्ट स्टेज में पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे वहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक लीशन देखने के लिए मिलेगा। सिंपली उनकी जो ओवरी होगी इट विल बी एबनॉर्मल, साथ ही साथ वहां पे ओवा इरेगुलर होगा, वहां पे आपको सिस्ट देखने के लिए मिलेंगे, इट विल बी मिसहैपन और डिसकलर्ड, एंड यू विल आल्सो नोटिस द पेडंकल्स हैविंग द प्रोमिनेंट थिकेंड स्टॉक्स। ठीक है।
सो नाउ मूविंग ऑन, देयर मे बी पेरिटोनाइटिस, अर्थराइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। देखो, जो भी बर्ड्स पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे वहां पे आपको पेरिटोनाइटिस देखने के लिए मिल सकता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल लेयर। वहां पे आपको अर्थराइटिस देखने के लिए मिल सकता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। साथ ही साथ वहां पे आपको पेरिकार्डाइटिस देखने के लिए मिल सकता है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट रीजन। ठीक है। आफ्टर दैट, इन सम इन्फेक्टेड हेन्स द ओवरी इज इनएक्टिव विद द ओवा स्मॉल, पेल एंड अनडेवलप्ड। बेसिकली जो भी हेन्स पुलोरम डिजीज से सफर कर रहे होंगे वहां पे कुछ केसेस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इनएक्टिव ओवरी। साथ ही साथ वहां पे जो ओवा होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, पेल होगा एंड इट विल बी अनडेवलप्ड। ठीक है। Moving on, we will discuss about the diagnosis. So simply one can go for the clinical signs, gross and histopathological examination, cultural isolation and the identification. Infected older birds can be detected by the demonstrating the Salmonella pulorum antibodies in the blood samples by agglutination test slide and the tube. The more recently enzyme-linked immunosorbent assay, that is ELISA, for detecting the Salmonella pulorum antibodies have been developed by using the lipopolysaccharide endotoxins from this Salmonella as antigen. This technique can be used for screening large number of the blood samples. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द पुलोरम डिजीज इन्फेक्शन। सो सिंपली फॉर द डायग्नोसिस वन कैन गो फॉर द क्लिनिकल साइंस, ग्रॉस एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देखो, मान लो कि अगर आप किसी एवियन स्पीशीज को सस्पेक्ट करते हो कि यहाँ पे पुलोरम डिजीज का इन्फेक्शन हो सकता है, तो सिंपली आप क्या करोगे, क्लिनिकल साइंस की स्टडी करोगे और अदर यू कैन गो फॉर द ग्रॉस एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। Moving on, you can also go for the cultural isolation and identification. Simply अगर आप किसी एवियन स्पीशीज को सस्पेक्ट करते हो कि यहाँ पे पुलोरम डिजीज का इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एवियन स्पीशीज से सैंपल कलेक्ट करोगे, लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को आइसोलेट करोगे, उसको कल्चर करोगे, देन यू विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज Salmonella pulorum और नॉट, विच इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द पुलोरम डिजीज। ठीक है। After that, the infected older birds can be detected by demonstrating the Salmonella pulorum antibodies in the blood sample by agglutination test slide tube method. So देखो भाई, सिंपली अगर आप किसी ओल्डर बर्ड में ये सस्पेक्ट करते हो कि यहाँ पे पुलोरम डिजीज का इन्फेक्शन हो सकता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ओल्ड बर्ड से ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। देन यू हैव टू परफॉर्म द एग्लूटिनेशन टेस्ट स्लाइड एंड ट्यूब मेथड, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर उस पर्टिकुलर ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं अगेंस्ट द Salmonella pulorum। एंड अगर Salmonella pulorum बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट इज कंफर्मेटरी कि उस पर्टिकुलर ओल्ड बर्ड में पुलोरम डिजीज का इन्फेक्शन है। ठीक है। आफ्टर दैट, most recently enzyme-linked immunosorbent assay for detecting the Salmonella pulorum antibodies has been developed by using the lipopolysaccharide from the Salmonella as an antigen. This technique can be used for screening the large number of blood samples. So देखो भाई, recent times में हम एलिसा की मदद से भी ये पता कर सकते हैं कि सस्पेक्टेड एवियन स्पीशीज में Salmonella pulorum बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है भी या नहीं। बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करा और ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हमने जब एलिसा परफॉर्म करा, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड दैट इज एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट बनी है। सिंपली क्या होता है, ये जो Salmonella pulorum है, ये बैक्टीरिया लिपोपॉलीसैकेराइड दैट इज एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है और इस एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट में होस्ट स्पीशीज में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और इसी एंटीबॉडीज को एलिसा मेथड से हम डिटेक्ट करते हैं एंड देन वी कंफर्म कि वेदर यहाँ पे Salmonella pulorum का इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। So with this we have completed the topic pulorum disease. I hope you understand it well. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.